structure of animals. Structure of एनिमल सेल. एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे यहाँ पे. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. Called plasma membrane, or you can say also cell membrane, or you can say plasmalemma. Outermost thin membrane, that is called plasma membrane or cell membrane. And here the double membranous structure, you can see here, this is the double membranous structure. This is the innermost layer and that is the outermost layer. Outermost layer invaginate outside to form a structure endoplasmic reticulum. This structure is called endoplasmic reticulum. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल अभी हम ये न्यूक्लियस को देख रहे हैं. ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये nuclear membrane. You can see here a small pore here and here. This small pore is called nuclear pore. This whole structure is called nucleus, and this is the double membranous structure which surround the nucleus. Inside this nucleus you can see a spherical structure that is called nucleolus. This spherical structure is known as nucleolus. Nucleolus lies inside the nucleus. And here is the so many thread-like structure. This is called chromosomes. Chromosomes. This structure is also called chromatin thread. Chromosomes are also called chromatin thread. ठीक है. This is
nucleus, and inside the nucleus this spherical structure is known as nucleus, and the thread like structure that is called chromosomes, and outside and outer membrane of nucleus invaginate outside to form a structure that is called endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Insert, you can say ER, endoplasmic reticulum. ये तो हो गया न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है ये सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेनस होती है। अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो बाहर की तरफ इन्वेजिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के बाहर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस भरा होता है, फिल्ड होता है। दिस फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट, because this nucleoplasm situated inside the nucleus, so its name is nucleoplasm. Here is another structure that is called, this is also a double membranous structure. This cell organelle is called mitochondria. It is also known as powerhouse of the cell. Mitochondria is also a double membranous structure. This is the outer membrane structure, and inner one is inner membranous structure. And another structure you can see here, this is called Golgi body. This is the Golgi body. Some free ribosomes are present in ribosome cytoplasm. This is the free ribosomes present in cytoplasm. 5 मिनट का होना चाहिए वीडियो, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा। Free ribosomes that is present in cytoplasm, and here in endoplasmic reticulum some ribosomes attach here in the form of granule. This is also ribosomes. This bag-like structure is called lysosome, which is called suicidal bag of the cell. Suicidal bag of the cell.
यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सेंट्रियोल, दिस इज द सेंट्रियोल, 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 and the whole structure inside the cell membrane is filled with a fluid-like substances that is called cytoplasm. Cytoplasm. This is cytoplasm. साइटोप्लाज्म। एक बार मैं और जल्दी से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। दिस इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है डबल मेम्ब्रेन का होता है। ये इनर मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये गैप होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उससे ये इन्वेजिनेट होकर क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं राइबोसोम्स। कुछ राइबोसोम्स फ्री होते हैं जो साइटोप्लाज्म में इधर उधर आपको देखने को मिलते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से अटैच होते हैं राइबोसोम्स, ये फिक्स होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी बॉडी। फ्री राइबोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम्स हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये आप देख रहे हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल शेप होता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। इसमें ये बैग जो होता है एंजाइम से भरा होता है। इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं और कभी कभी ये मेम्ब्रेन बस्ट हो जाने की वजह से ये एंजाइम बाहर निकलते हैं और पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो ये तो रहा आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एक एनिमल सेल का ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बताऊंगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं उसको जानेंगे। फिलहाल इसको आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए और इसको ड्रॉ करके लेबल कर लीजिए। थैंक्स।